میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ قطر اور برطانیہ نے فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ یہ تعاون دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی شراکت کا ترجمان ہو۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کا پیک ٹائم ڈھلنا شروع ہو گیا ہے اور کووڈ-19 کے 66,000 سے زیادہ مریض ریکور ہو گئے ہیں۔ اور برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران پر عالمی پابندیوں کو دوبارہ لگانے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برٹش رائل ایئر فورس اور قطر کے امیری ایئر فورس کے طائفون جنگی جہازوں کے ایک اسکواڈرن نے مشترکہ پرواز کی ہے۔ اس اسکواڈرن کو نمبر 12 کا نام دیا گیا ہے اور مشترکہ پرواز کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے کہا کہ اس اسکواڈرن کی پہلی پرواز ایک اہم کامیابی ہے اور پرواز کے دوران قطر اور برطانیہ کے جھنڈوں کو ایک ساتھ لہرانا دونوں ملکوں کے ویژن اور خوشحال اور بہتر مستقبل کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی اسٹریٹجی میں ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر دفاع جناب بن ویلاس نے کہا کہ یہ واقعہ نہ صرف دونوں ملکوں کی گہری دوستی کا خماس ہے بلکہ یہ برطانیہ کی جانب سے قطر کے تئیں ذمہ داریاں پوری کرنے کا بھی مظہر ہے، خاص طور پر جبکہ قطر دنیا کا واحد ملک ہے جس کا برطانیہ کے ساتھ مشترکہ اسکواڈرن ہے۔ ریاست قطر نے ایک بار پھر لیبیا کی وفاقی قومی حکومت اور السخیرات معاہدے کی حمایت اور سپورٹ کا اعادہ کیا ہے اور تمام لیبیائی فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عبوری مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ مذاکرات اور قومی بات چیت شروع کریں تاکہ لیبیا کی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ ہو اور لیبیا کے عوام کی امنگیں پوری ہوں۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے کیا۔ دریں اثنا لیبیا کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے لیبیا کے متعلق اجلاس میں قطر کے کردار پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ قطر چیریٹی اور قطر میں کام کرنے والے پروفیشنل سوڈانی باشندوں کی جانب سے آج کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے 7 ٹن پر مشتمل امدادی سامان دارالحکومت خرطوم پہنچ گیا ہے۔ اس میڈیکل ایڈ میں ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کو محفوظ رکھنے والے لباس اور میڈیکل سپلائز شامل ہیں۔ اس امدادی کھیپ میں تقریباً 20 لاکھ ریال کی مالیت کا امدادی طبی سامان موجود ہے۔ الخرطوم ایئرپورٹ پر سوڈان کے وزیر صحت ڈاکٹر اکرم علی تھوم نے امدادی طیارے کا استقبال کیا جبکہ سوڈان میں قطری سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور جناب طلال فرحان العنزی نے قطر کی نمائندگی کی۔ ان کے علاوہ سوڈان میں ایمرجنسی حالات کو مانیٹر کرنے والی سپریم کمیٹی کے متعدد اراکین بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ سوڈانی وزیر صحت نے اس موقع پر قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس امداد سے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے بہتر زندگی گزارنے اور انصاف اور سلامتی پر مبنی محفوظ زندگی کے حقوق کے تحفظ کا پابند ہے۔ قطر نے گزشتہ برسوں کے دوران اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں پناہ گزینوں یا ریفیوجیز کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس عظیم مقصد اور پناہ گزینوں کی امداد اور سپورٹ کے لیے $3.5 ارب سے زیادہ رقم دی ہے۔
कतर और मोनाको की पहल पर आलमी इदारे के मेंबर 18 मुल्कों ने स्पोर्ट्स और जिस्मानी वर्जिश और समाजी अफजाइश पर पड़ने वाले कोरोना 19 के मनफी असरात के बारे में एक मुश्तरका बयान जारी किया है। वाज़ेह है कि कतर और मोनाको पायदार तरक्की के लिए स्पोर्ट्स फ्रेंड्स के ग्रुप के जॉइंट प्रेसिडेंट्स हैं। 18 मुल्कों के इस मुश्तरका बयान में खेल कूद और जिस्मानी वर्जिश के मुख्तलिफ मैदानों में अहम किरदार को तस्लीम किया गया है, जिनमें तालीम, पायदार तरक्की, अमन, ताउन, यकजहती, इंसाफ, समाजी यगानगत और सेहत वगैरह शामिल हैं। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 20 जून 2020 को कतर में कोविड-19 के मजीद 1354 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह अब तक रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 66,763 हो गई है। वजारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1026 नए केस भी सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की वफात हो गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि कतर में कोरोना वायरस का पीक टाइम ढलना शुरू हो गया है और उसके फैलाव में कमी आ रही है, जिसकी वजह हुकूमत की जानिब से उठाए गए एहतियाती इक़दामात और अवाम की जानिब से सरकारी हिदायत की पाबंदी है, जिनमें सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारना और बग़ैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलना है। कतर में 66,000 से ज़्यादा कोविड-19 के मरीजों की शिफायाबी इस बात का सबूत है कि इस वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार की गई पॉलिसी सही साबित हुई और बड़े पैमाने पर की गई सरकारी और गैर सरकारी कोशिशें बारआवर होने लगी हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत WHO ने एक बार फिर दुनिया को कोविड-19 की दूसरी लहर से खबरदार किया है। अलबत्ता दुनिया के कई मुल्कों में पाबंदियों को नरम किया जा रहा है और दुनिया इस वायरस के साथ जीने का हुनर सीख रही है। अमेरिका में कोविड-19 के इस माहौल में सदर ट्रंप का इंतखाबी जलसा मुनाकिद किया गया, जो इस तरह के माहौल में एक गैर रिवायती जलसा माना जा रहा है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। लीबिया की विफाकी हुकूमत, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल है, के सरबराह जनाब फाइज अस्सिराज ने आज हफ्ते को अलजायर में मुल्क के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून के साथ मुलाकात की है। अलजायर लीबिया के कई साल से जारी तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की कोशिशें कर रहा है। इससे कबल लीबिया की विफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो अरब लीग के लीबिया के मुताल्लिक़ आइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। उधर अंकारा में इटली के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद जावेश ओगलो ने कहा कि तुर्की लीबिया की विफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा और लीबिया में सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इटली के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद किया जाता है। तीनों मुल्कों ने कहा कि वो इस मसले का सिफारती हल निकालने के लिए हकीकत पर मबनी रास्ता इख्तियार करेंगे, ताकि तहरान को उभारा जा सके कि वो सन 2015 में बड़ी आलमी ताकतों के साथ किए गए एटमी मुआहदे की पाबंदी करे। चीन ने ऐलान किया है कि मुतनाज़ा इलाके लद्दाख की वादी गालवान चीन की सरहद के अंदर वाक़े है और ये वादी चीन की है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने 15 जून को होने वाली ख़ूरेज़ झड़प का जिम्मेदार भारत को ठहराया है। इस झड़प में भारत के 20 फौजी मारे गए थे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़हाओ लीजियान ने कहा कि भारत ने 6 जून को दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जो बकौल उनके एक सोची समझी इश्तियाल अंगेजी थी। उन्होंने कहा कि सही और गलत बिल्कुल वाज़ेह है और तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। ट्विटर पर अपने पैगामात में चीनी एहलकार ने लिखा कि भारत गुज़िश्ता माह अप्रैल से यकतरफा तौर पर इस इलाके में रोड्स, पुल
और दीगर फैसिलिटीज तामीर कर रहा था। वाज़ेह है कि भारत का बयान इसके बिल्कुल मुतज़ाद है। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब चीन ने भारत की सरजमीन पर एक स्ट्रक्चर की तामीर शुरू की। काबिल ज़िक्र है कि भारत और चीन के दरमियान 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिस पर गुज़िश्ता मई से कई बार छोटी बड़ी झड़पें हुई हैं, लेकिन 20 जून को वादी गालवान में होने वाली झड़प में भारत के 20 फौजी मारे गए, जिसके बाद तनाज़े में शिद्दत आ गई है। भारत में एक दिन में अब तक के कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क में 14,516 केस रजिस्टर किए गए, जिसके बाद कोविड-19 के भारत में कुल मरीजों की तादाद 3,95,048 हो गई है, जिनमें से 12,948 जिंदगी की जंग हार चुके हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक दिन में इस बीमारी से मरने वालों की नई रिकॉर्ड तादाद सामने आई है। खबरों के मुताबिक आज 153 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद कोरोना से पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई है, जबकि मरीजों की मजमूई तादाद 1,71,665 हो गई है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर और बरतानिया ने फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया है, ताकि ये ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान हकीकी शराकत का तर्जुमान हो। वजारत सेहत ने कहा है कि कतर में कोरोना वायरस का पीक टाइम ढलना शुरू हो गया है और कोविड-19 के 66,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। और बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान पर आलमी पाबंदियों को दोबारा लगाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की खालिद अल मर्री ने